Okay, so good morning friends, good morning to everyone. Okay, hello. In last class, okay, as you already know that we are describing everything about cell or say organization of the cell. If you recall what we have discussed till in this chapter, then we primarily discussed cell theory initially, then we discussed prokaryotic cell in brief details, and then we started with all the discussion related to eukaryotic cell. Okay, and in eukaryotic cell till now we are done with all other structures except nucleus, or in other words we need to discuss nucleus as the next and the last structure that is related to eukaryotic cell. पर्टिकुलरली इफ़ वी टॉक अबाउट लास्ट क्लास, अगर हम पर्टिकुलरली लास्ट क्लास की बात करें तो हमने क्या डिस्क्राइब किया था? फ्लैजेला एंड सिलिया, और फ्लैजेला और सिलिया उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह। तो अगर हम फ्लैजेला या सिलिया की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए थे, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज सीन इन शाफ्ट और फ्लैजेला? व्हाट विल बी द आंसर? इट शुड बी 9+2 as there are 9 peripheral doublets and 2 central single microtubules that exist in flagella. If you talk about cilia, answer will be same, that is 9+2 arrangement. Is it okay? And then we discussed something about centriole. If you talk about centriole, it is a kind of organelle that lies in higher organisms, particularly animals, right? In plant cells you don't see the presence of centrioles. What centrioles do? Centrioles are responsible for formation of spindle assembly or spindle fibers, okay, that work or that help in the process of cell division, that is mitosis and meiosis. If you compare between centriole and flagella and cilia, what is similar thing? If you recall, the similar thing amongst centriole and flagella or cilia is both are internally made up of same cytoskeletal structure, that is microtubules, right? And in centrioles, if you see, the arrangement is said to be 9+0, as there is no microtubule lies in the center and 9 peripheral triplets exist, right? So 9+0 arrangement is for centriole, 9+2 arrangement is for flagella and cilia, right? So all these things we described particularly in last class. Okay, now we are towards the end of this chapter. As far as which chapter is concerned, cell organization is concerned, we are at the end region of this particular chapter with the discussion of last organelle, that is nucleus. Okay, what is nucleus? If we describe it, it is not a nucleus of an atom जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, right? We are talking about a nucleus of a eukaryotic cell, any eukaryotic cell. So what is the difference when we describe a nucleus of some atom and nucleus of a cell? So probably the basic difference that we should say is the nucleus of cell not necessarily lies in the center. यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस नेसेसरीली सेल के सेंटर में हो ये ज़रूरी नहीं, जैसा कि एटम के लिए होता है, ओके। और एटम के न्यूक्लियस की तरह इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो फिर होता क्या है? अगर हम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल, और व्हाट वी शुड डिस्क्राइब अबाउट इट, दिस ऑर्गेनेल of eukaryotic cell contain
genetic material, okay, that is DNA in the form of chromatin or chromosomes. See, this is probably the simplest description that can be given for a nucleus of an eukaryotic cell. कि भाई जब भी हम किसी ऑर्गेनेल की बात करते हैं, जैसे तुम माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करो तो एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ दिमाग में कौन सी आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ अ सेल बिकॉज इट इज़ particularly functioning for generating ATP through aerobic respiration. Whenever the name chloroplast comes to our mind, what is the by default thing that comes to our mind? Photosynthesis. Chloroplast is an organelle that is involved in photosynthesis. Whenever the term lysosome comes to our mind, by default what comes to our mind? It is related to lysis of something, breakdown of something, destroying something, right? Whenever the term say Golgi complex or endoplasmic reticulum comes to our mind, what comes to our mind? That these are single membrane bound structures which are functioning for say modification of proteins or formation of proteins with the help of ribosomes and all, है ना? तो हर ऑर्गेनेल के साथ एक बेसिक प्रिंसिपल चीज जुड़ी हुई होती है. उसी तरह से सेल की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के साथ जुड़ी हुई बेसिक फैक्ट क्या है कि न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. ये तो हम कई बार बोल चुके हैं. वही तो बेसिस है. जिस सेल में न्यूक्लियस होता है उसी को हम यूकैरियोटिक कहते हैं, अदरवाइज सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं. तो फिर न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियस का पर्पस क्या है? What is the purpose of presence of nucleus in a eukaryotic cell? The principal thing comes to your mind or should come into the mind be what? It is the organelle that contains genetic material within it. Okay, what is genetic material? So it's a very broad concept. There are separate 2, 3, 4 chapters to understand what is genetic material and what it do. But just for a reference purpose, एक simple description हमें इसका अगर दे तो genetic material सेल में present वो चीज़ होती है जो सेल के और इसीलिए पूरी बॉडी के हर एक छोटे बड़े फंक्शन को क्या करती है? कंट्रोल करती है थ्रू द यूनिट्स कॉल्ड जीन्स. ये नाम हर किसी ने डेफिनेटली सुन रखा है. तो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट इन और ऑन जेनेटिक मटेरियल दैट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी स्मॉल एंड बिग एक्टिविटी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और सेल. तो ये जीन्स जिसमें होते हैं वो कौन है? जेनेटिक मटेरियल. और ये स्ट्रक्चरली कहाँ पाया जाता है? विद इन न्यूक्लियस. अगर बात कौन से सेल की हो रही हो? यूकैरियोटिक सेल, राइट? सो प्राइमरी पर्पस ऑफ अ न्यूक्लियस इज टू कंटेन जेनेटिक मटेरियल. दुनिया भर में जितने भी अलग अलग टाइप की सेल्स और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर बोलने से बेटर ऑलमोस्ट सभी में, वायरसेस को छोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कौन सा केमिकल काम करता है? डीएनए. फुल फॉर्म यू प्रोबेबली नो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. दैट इज डीएनए. केमिकली it is deoxyribose nucleic acid and act as genetic material in almost all the living cells present on this earth, whether it is prokaryotic or eukaryotic. But as we discussed in the past already, that the form of DNA that lies in prokaryotic cells is nucleoid, right, which is not covered by any membrane. While in eukaryotic cell that we are discussing about, the DNA lies in the form of chromatin or
chromosome which is covered by nuclear membrane, or you can alternately say this genetic material in the form of chromatin or chromosomes present within nucleus. तो हम उल्टा बोल रहे हैं, हम ये बोलने की बजाय क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। पहले क्या पढ़ा था, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, अब न्यूक्लियस को एज अ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उल्टा बोल रहे हैं। बात तो एक ही है कि न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, केमिकली इट इज डीएनए एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स का फर्क आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको समझ जाएगा। वैसे बता दूं कि क्रोमैटिन रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है और क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए को अगर कंडेंस किया जाए तो क्रोमोसोम्स बनते हैं और उसको अगर रिलैक्स किया जाए तो क्रोमैटिन बनता है। तो बेसिकली क्रोमैटिन और क्रोमोसोम अलग चीज़ें नहीं हैं, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग। व्हाट थिंग? डीएनए इट इज इट ओके? नाउ हमको सेल ऑर्गेनाइजेशन में पहले से आपको बताते आ रहा हूँ, अभी भी फिर से वही बात बोलूँगा कि हमको फोकस ज़्यादा किस पे रहना है? स्ट्रक्चर पे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर यू मस्ट बी more focused on the structural details of the component that you are learning, not the functional details, right? You should more properly know the structure of a nucleus as far as this chapter is concerned, because functionality of the components lying within nucleus will come in upcoming chapters. Is it okay? So we are more concerned, हम ज़्यादा कंसर्न किस चीज़ के साथ है यहाँ पे इस चैप्टर में? स्ट्रक्चर के साथ। ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस इन जनरल की अगर हम बात करें तो विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यू प्रोबेबली सी in every nucleus belonging to any eukaryotic cell? If we start with outermost, it is nuclear membrane. उसके बाद there is underlying nuclear lamina, then nuclear pores, then chromatin fibers, or simply call it chromatin, and finally nucleolus. These are the structural components which you can describe for a structure as a whole called nucleus. ठीक है, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स या फिर लाइसोसोम्स के लिए क्या कहा था? आर दे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉट? दे आर membrane bound organelles, but all these means endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles, all these are single membrane bound organelles. मतलब उनके surface पे कितनी membranes है? One. That's why they are called single membrane bound organelles. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए हमने क्या कहा कि these are double membrane bound organelle. They have outer membrane and inner membrane, means they are having two membranes, so we call them double membrane bound organelles. तो मैंने कुल मिला के बात करें अगर हम, तो बात क्या बनती है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दो तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स के बेसिस पे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड.
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सिंगल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब दो मेम्ब्रेन से कवर्ड, आउटर एंड इनर। तो न्यूक्लियस किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है, तो न्यूक्लियस आता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड की कैटेगरी में। मतलब न्यूक्लियस के सरफेस पे कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हम बोल रहे हैं वो कैसी है, टू लेयर्ड, मीन्स हाउ मेनी membranes are there on the surface of nucleus, two, just like mitochondria and chloroplast. So if we draw the nuclear membrane, we should draw it like this. Typically nucleus is not always circular, ये एक जनरल डायग्राम है, तो वी आर ड्राइंग इट अ बिट सर्क्यूलर, नॉट नेसेसरीली कि न्यूक्लियस हर सेल का सर्कुलर ही हो। ओके, अब अगर हम यहां देखें तो ये जो चीज है इसको क्या बोलोगे, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस विल बी सिंपली कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। बट कहानी में ट्विस्ट या थोड़ी सी अलग चीज यहां पे ये है कि ये मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूअस नहीं होती, एट प्लेसेस दे आर डिसकंटिन्यूअस। मतलब वो कुछ इस तरह से डिसकंटिन्यूअस होती है कि इनके बीच क्या क्रिएट होती है, स्पेसेस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इन गैप्स की वजह से जो स्पेसेस क्रिएट होती है इनको हम कहते हैं सेकेंड कंपोनेंट दैट वी रोट हियर। हमने यहाँ पे जो सेकेंड चीज लिखी थी क्या था, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, अच्छा सेकेंड नंबर पे लैमिना लिखा था, तो तीसरे नंबर पे जो चीज लिखी थी दैट वाज न्यूक्लियर पोर्स। तो दीज आर व्हाट, नथिंग बट न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स को अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे, व्हाट शुड बी द डिस्क्रिप्शन फॉर दीज गैप्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, these are called nuclear pores. What should be the description? The description goes like, these are spaces or gaps present between nuclear membrane. Simple. What is the description for nuclear membrane? The nuclear membrane for nucleus is double layered, that is outer membrane and inner membrane, or in simplest sense what we can say is nucleus is a double membrane bound structure. Okay, now if you go below nuclear membrane, here is the third component. Okay, the network of proteinaceous filaments that lies beneath nuclear membrane or inner membrane of nuclear membrane. This is made up of proteins. Okay, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। तीसरा कंपोनेंट देखो, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में हमने 5 चीजें लिखी थी। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियर, सर पॉज कर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए 5 चीजें बोली थी, जस्ट रिकॉल देम। व्हाट वेयर द 5 थिंग्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन और क्रोमैटिन फाइबर्स, एंड फाइनली न्यूक्लियोलस। तो उसमें से 3 यहां पे दिखती है। पहली इनर और आउटर मेम्ब्रेन टोटल मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद द स्पेसेस और गैप्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन मेम्ब्रेन्स, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, एंड फाइनली द प्रोटीनेशियस
skeleton like structure that supports the nuclear membrane from inside. It is called as nuclear lamina. Now comes the most important component that you will find in the structure of nucleus. What is it? इसको तुम कैसे भी निकालो, क्योंकि ये लिटरली ऐसा ही दिखता है जब तुम किसी न्यूक्लियस को कहाँ देखते हो, माइक्रोस्कोप में, क्योंकि न्यूक्लियस सेल के अंदर है, सेल नेकेड आइज से नहीं दिखती, तो देयर इज नो क्वेश्चन of observing the nucleus with naked eyes. You can only see the nucleus with the high power microscopes if you want to study the nucleus in details. तो जब हम माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसके अंदर हमको कुछ ऐसा ही दिखता है, बहुत सारा कॉइल्ड मटेरियल. अब ये जो कॉइल्ड मटेरियल यहाँ ब्लैक कलर में निकाला है, इट इज टिपिकली कॉल्ड क्रोमैटिन. कुल मिला के इस पूरे चीज को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन. और ये केमिकली किस चीज से बना हुआ है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. अब ये कोई एक ही नहीं चीज है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड मटेरियल बहुत सारे ऐसे फाइबर्स से बना हुआ है जो एक दूसरे में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं. तो ऐसे ईच फाइबर को क्या कहते हैं हम, क्रोमैटिन फाइबर. ध्यान से समझो. देर आर नंबर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स दैट आर इंटरमिंगल्ड विथ ईच अदर एंड प्रेजेंट टुगेदर. So these chromatin fibers when mixed together and are present together, they produce a scenario like this. This whole thing is called as chromatin. So in other simple words, what we can say is chromatin as a structure or chromatin as a material is made up of many intermingled chromatin fibers, and each chromatin fiber is made up of DNA. So chromatin as a whole is made up of DNA, and as I said it is a relaxed form. अब एक बात एडिशनल बता दूं मैं यहाँ पे कि जब ये रिलैक्स्ड फाइबर, इसमें से हर एक फाइबर जब कंडेंस होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता है. ये थोड़ा सा जाना पहचाना स्ट्रक्चर है. व्हाट इज दिस? इस फॉर्म को हम क्रोमोसोम कहते हैं. तो देखो, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं है. क्रोमैटिन रिलैक्स्ड फॉर्म है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है. क्रोमैटिन फाइबर इज अ रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. ईच फाइबर व्हेन अंडरगोज कंडेंसेशन इट फॉर्म्स क्रोमोसोम. अब बात ऐसी है कि इस चैप्टर के स्कोप के बियॉन्ड है ये कि हम ये समझे कि क्रोमैटिन क्यों होता है और क्रोमोसोम क्यों बनता है. फिर भी एक रेफरेंस के तौर पे कि ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हट जाए अगर हो तो, कि तुम अगर सेल को, किसी भी यूकैरियोटिक सेल को तुम अगर डिवीजन के समय पे देखोगे, मतलब माइटोसिस के समय या मियोसिस के समय, तो तुमको न्यूक्लियस एज अ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा. क्या बोला मैंने? कि अगर हम किसी सेल को उसके डिवीजन के दौरान देखें, मतलब माइटोसिस के दौरान या फिर मियोसिस के दौरान, तो हमको न्यूक्लियस एज अ स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि तब वो डिवाइड हो रहा है. और उस समय पे, मतलब माइटोसिस या मियोसिस के समय पे, ये स्ट्रक्चर गायब हो जाता है थोड़े समय के लिए. और जब तुम न्यूक्लियस देख पाते हो तो वो इसलिए देख पाते हो क्योंकि तब सेल डिवाइड नहीं हो रही, वो अपने लाइफ साइकिल के उस फेज में है जब वो डिवाइड नहीं हो रही. उसको टिपिकली हम इंटरफेज कहते हैं. ठीक है, जो माइटोसिस या मियोसिस के बाद आता है. तो न्यूक्लियस दिख रहा है, इसका मतलब सेल डिवाइड नहीं हो रही, और अगर सेल डिवाइड हो रही है तो न्यूक्लियस नहीं दिखेगा. तो जब न्यूक्लियस दिखता है मतलब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती,
तब उस सेल के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल इस रूप में होता है। कौन से फॉर्म में? क्रोमैटिन। और जब वो सेल डिवाइड हो रही होती है, मतलब जब न्यूक्लियस गायब हो जाता है, तब उसका जेनेटिक मटेरियल इस फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में? क्रोमोसोम। सो इफ यू वांट टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम, you will not be able to see the nucleus. If you want to see the nucleus, you will not be able to see the chromosome. That's the point. Okay, अब ये ज़्यादा बेटर तरीके से हमको तब समझ में आएगा जब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो बाहर की तरफ है डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच बीच में उसके है गैप्स, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जिसके थ्रू चीज़ों का आवागमन होता है। बाहर कौन है? साइटोप्लाज्म। ये सेल नहीं है, न्यूक्लियस है, तो बाहर कौन है? साइटोप्लाज्म। अंदर अगर हम देखें तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन वाला क्या है? प्रोटीनेशियस स्केलेटल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना। और अभी जो हमने देखा वो ये क्या है? मैगी जैसा। इट इज टिपिकली कॉल्ड क्रोमैटिन, मेड अप ऑफ मेनी इंडिविजुअल क्रोमैटिन fibers, and each fiber, if undergo condensation, it forms chromosome. Chemically, all of these things are made up of DNA, which is therefore called genetic material of the eukaryotic cell. Why genetic material? As I said initially in the same class, that this DNA or its particular segments are units of our heredity, means they carry the information for each small and large activity that we show, or all our activities are controlled by particular segments of this DNA called, what we call them? Genes. These genes are present in this chromatin, and therefore this chromatin, which is made up of DNA, is said to be genetic material of ours or any other eukaryotic organism. Getting the thing? And now we are towards the end of this particular structure, as we are going to describe the final component that lies within nucleus, as we are done with 4 out of 5, right? Which is that component? That component is called as nucleolus. See the name. It is not nucleus. It is a structure which is dense, granular, and lies inside nucleus. It is called as nucleolus. Okay. As far as nucleolus is concerned, it is formed, okay, it is formed or it is made up of DNA, RNA and proteins. ये जो न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये केमिकली कौन सी 3 चीज़ों से बना हुआ है? DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। ओके, अब बात ऐसी है कि न्यूक्लियोलस कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं होता। हर एक क्रोमैटिन फाइबर, व्हाट आई सेड, हर एक क्रोमैटिन फाइबर, कितने क्रोमैटिन फाइबर्स अंदर प्रेजेंट है, ये फिक्स चीज नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करती है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसमें से हर एक न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 46 फाइबर्स होते हैं। कितने? 46। ओके, बट ह्यूमन के लिए 46 है, तो प्लांट के लिए हो जरूरी नहीं कि 46 हो। एवरी ऑर्गेनिज्म वैरीज इन द नंबर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, hence chromosomes they contain, right? So depending upon the eukaryotic cell type that we are describing, what will vary? The number of chromatin fibers, right? But one thing will not vary. What?
that every eukaryotic nucleus will have nucleolus, as all of them have more or less quantity of chromatin fibers in them. So what I was saying is कि न्यूक्लियोलस कोई इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं है. हर एक क्रोमैटिन फाइबर अपना कुछ एरिया या कुछ रीजन डोनेट करता है, या हम ये कहें कि सारे क्रोमैटिन फाइबर्स का एक पर्टिकुलर एरिया एक जगह जमा होकर एक डेंस रीजन क्रिएट करता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. अब इससे जुड़ा हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट और इकलौता सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि दिस स्ट्रक्चर, ओके, दिस स्ट्रक्चर is considered as a site for synthesis of राइबोसोम्स. याद करो, राइबोसोम्स पढ़ा है हमने, ATS, 70S, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब कुछ हमने पढ़ा है. अब बात यह है कि उन राइबोसोम्स का फॉर्मेशन या सिंथेसिस सेल में कौन सी जगह पे होता है. ऐसा माना जाता है न्यूक्लियोलस, जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, एज अ स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर यू कैन से. वाई वी विल इलेबोरेट दिस थिंग इन अपकमिंग चैप्टर्स. यू जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ इज व्हाट, कि न्यूक्लियोलस is a structure that is concerned with formation or synthesis of ribosomes within an eukaryotic cell. It's a direct question. Okay, तो ये जो पूरी चीज आपको बोर्ड पे दिख रही है फिलहाल, वो है एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ओके, what 5 components you can now locate in it? Component number 1, component number 2, component number 3, component number 4, and finally component number 5. These are the 5 components that are to be described as far as structure of or organization of nucleus is concerned. Is it okay? With this say, okay, we are officially done with a chapter that is cellular organization or organization of cell. Okay, you will find many additional things in a reading material that you will get shortly. Okay, so all that additional things that you will find in your reading material will come, okay, tomorrow or day after tomorrow in some topic. So don't get confused. हम जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 और 2 months, वो सब किसके बारे में थी? ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. ओके, बिफोर एंडिंग टूडेज क्लास एंड लेक्चर, आई विल अगेन से go through all the things that we described in this chapter. Whenever you will get reading material, read it properly. Okay, as this chapter is a base for many upcoming chapters that we are going to discuss. As far as next thing that we are going to start with is concerned, we will start with a fresh new chapter called morphology of plants. Okay, हम अगली क्लास से क्या शुरू करने वाले हैं? अगर आपके पास बुक्स है तो you should go through this chapter. The name of chapter we are going to start with is morphology of the flowering plants. Okay, locate the chapter in your book, read it. Okay, for now, thank you. 11th के लिए